Very good morning, dear students. Till now, we have studied 5 chapters or 5 lessons from Footprint Without Feet, and 2 lessons and 3 poems from First Flight. Next, from First Flight, we are going to talk about 2 stories about flying, and in this chapter, in third chapter, there are 2 stories about flying. First, we will learn about his first flight. इसमें 2 चैप्टर है. तीसरा जो लेसन है हमारा 2 stories अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर का नाम है इज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो चैप्टर है वो है ब्लैक एरोप्लेन. Both the stories are very motivational, so you will learn a lot of things from reading these stories. सबसे पहले हम बात करते हैं his first flight, और this story is written by Liam O'Flaherty. He is an Irish writer, short story writer, very famous writer from Ireland. This story is about a young seagull who is afraid to fly. He is sitting on a ledge, on a plateau, and his brothers and sisters, siblings, they have already flown away, and they are giving him motivation. They are saying to him that you can also fly, but he is very afraid to fly. His parents are scolding him. They are saying to him that you will die of hunger from here. If you be here, then you will die. And the young seagull, he is very afraid. He tries, but suddenly a terror seized him and he came back to his ledge. Now 24 hours have passed. He is very hungry and he is looking at his brothers, parents. They are taking their meals. They are eating different kind of fishes. So this scene, when he saw, he was completely mad with hunger. He requested his parents, his siblings, to give him some part of their food, but nobody listened, and even nobody cared about him. They were busy doing their business. Only mother could see him that he is very hungry, so she came back near him, and there was a piece of fish in her beak. The young seagull saw the food, and he also went nearer and nearer to his mother. He was surprised why his mother not coming to him. So he went there, and suddenly he fall down. Now a big terror was there. He was not able to fly. His wings completely seized, and he was not able to do anything. He was completely in depression, what to do. But some inner conscience aroused in him, and he started flapping his wings. He tried to fly, but he couldn't do, and after many efforts he was able to fly. He again tried to flap his wings, but suddenly his mother motivated him, and he was now
he was flying again and again, and the terror which he had in his mind, now he was completely out of fear, and thus he made his first flight. तो हमने एक छोटा सा इसका समराइजेशन देखा। अब हम इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं, और इस चैप्टर से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम कोई भी अगर काम पहली बार करते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा फियर लगता है, लेकिन जब हम उस काम को बार बार करते हैं, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, धीरे धीरे उस काम को करते रहने से उसमें परफेक्शन आती है, एंड डेफिनेटली वी गेट सक्सेस बाय प्रैक्टिसिंग एंड to conquering our fear. So let's begin. This is an imaginary story of a young seagull. ये जो स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जो डाइव लगाता है फॉर हिज फूड। द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई। अब वो टाइम आ गया था कि उसे अब ये सीखना था कि हाउ टू फ्लाई, उड़ा कैसे जाए। हिज टू ब्रदर्स एंड अ लिटिल सिस्टर हैड लर्न्ड हाउ टू फ्लाई बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स। उसके जो भाई बहन थे वो ऑलरेडी जो है वहाँ से उस जिस प्लेटू पर वो रुके हुए थे वहाँ से वो ऑलरेडी उन्होंने सीख लिया था बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हुए। तो they had flown away. They came to the brink of the ledge. वे उस किनारे पर आए उस प्लेट्यू के। flap their wings, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, and flown away, और वो उड़ गए। But when the young seagull came to the brink, लेकिन जब young seagull की बारी आई, वो ब्रिंक पर आया and tried to fly in the air, जब उसने उड़ने की कोशिश की, he became afraid, तो वो डर गया। He felt sure that if he tried to fly, और उसे ये श्योरिटी हो गई थी कि अगर वो कोशिश भी करेगा he would fall into the sea below, तो जो नीचे जो पूरा ओशन जो था समुद्र उसमें वो गिर जाएगा। So he returned to his hall on the ledge, इसलिए वो वापस जहाँ पर वो बैठा हुआ था उस हॉल में वहाँ पर चला गया। The seagull's parents came to take him along with them, but he refused to fly. सीगल के जो पेरेंट्स थे वो वापस आए उसे लेने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। They threatened that he would starve on the ledge. उन्होंने उसे धमकाया, उसे डराया और ये कहा कि he would be hungry on the ledge, वो भूख से मर जाएगा। He would starve. Starve means भूख से मर जाना। But the bird was too afraid to move even a single inch. लेकिन जो यंग सीगल था he was very afraid, he was much afraid, और वो थोड़ा सा 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिला। 24 hours had passed, पूरा एक दिन गुजर गया था। The young seagull had not eaten anything, उसने कुछ नहीं खाया। He was now feeling very hungry, अब उसे भूख लग रही थी। He saw his mother sitting on a plateau, उसने देखा कि सामने वाले प्लेट्यू पर उसकी माँ बैठी हुई है। She was eating a fish, वो कुछ खा रही थी। Some pieces of fish. The sight only increased his hunger. जब उसने देखा कि she was eating something, तो उसका उस साइट ने उसे और भी ज़्यादा जो है उसकी हंगर नेस को बढ़ा दिया। He requested his mother to bring him some food. उसने रिक्वेस्ट भी की मन ही मन कि कुछ जो खाना है वो उसके लिए भी लेकर आए। The mother looked at him. She picked up a piece of fish. माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। Flew towards him, और वो उसकी तरफ आ गई उड़ते हुए। The mother did not come to him, लेकिन माँ उसके पास नहीं आई बिल्कुल। The young seagull was much surprised why she was not coming near him. और जो यंग सीगल था वो सरप्राइज हुआ कि माँ जो है वो इतनी पास आ गई लेकिन वो बिल्कुल मेरे पास क्यों नहीं आ रही। He could not bear it any longer. अब now it was not tolerable for him, क्योंकि भूख उसे लग रही थी और वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था।
ही वॉज मैडर्न बाई हंगर, अब वो एक तरह से पागलों जैसा व्यवहार करने लगा, बिहेव करने लगा, पागल हो गया वो भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने कुछ नहीं देखा और उसने उस फिश की तरफ जो उसकी मदर की बीक में था, उसकी चोंच पर लगा हुआ था, उसने डाइव लगा दी। ही कुड नॉट रीच हिज मदर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। बट फेल फ्रॉम द लेस डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, लेकिन वो गिर गया कहीं पर, वो स्पेस में कहीं जो है नीचे की ओर जा रहा था। ही वॉज फील्ड विथ फियर, वो डर गया था, एंड क्राइड, और चिल्लाने भी लगा। बट दिस फियर लास्टेड ओनली अ फ्यू मिनट, लेकिन उसका जो ये फियर था वो कुछ ही समय रहा। ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड ट्राइड टू फ्लाई, अब उसने कोशिश की कि मरना तो है ही सही, क्यों ना एक लास्ट जो है वो अटेम्प्ट या कोशिश की जाए। सडनली ही फाउंड दैट ही वॉज फ्लाइंग, लेकिन जल्द ही उसने ये पाया कि नाउ ही इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। ही क्राइड विथ जॉय, वो खुशी से चिल्लाया। स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, और वो और ऊपर, अब वो नीचे नहीं जा रहा था। नाउ ही लर्न हाउ टू फ्लाई, वो सीख गया था कि किस तरह से फ्लाई किया जाता है। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लू अराउंड हिम, अब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स थे, वो भी उसके आसपास आ गए थे और वो उड़ रहे थे। स्क्रीम्ड विथ जॉय, वे खुशी से चिल्ला रहे थे। After some time, the seagull's parents, brothers and sisters landed on the sea. और कुछ समय बाद वो वापस उस जहां पर वो बैठे हुए थे दूसरी ओर प्लेटू पर, वो आ गए सारे। They asked him to come there. उन्होंने कहा कि अब तुम भी आ जाओ। Now you have learned how to fly. The seagull thought that it was green flooring. He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसने अपने जो पैर हैं, जो फीट हैं, वो ग्रीन सी पर, यानी कि वाटर जो लेवल था उस पर वो आ गया था। हिज लेग्स बिगेन टू सिंक, उसके जो लेग्स थे वो डूबने लगे उस सी पर, ओशन पर। एंड ही क्राइड विथ फियर, वो चिल्लाने लगा एक बार डर से। बट हिज बैली टच द वाटर, लेकिन केवल जो पानी जिस वाटर पर वो चल रहा था, यानी कि वो कोशिश कर रहा था उस पर फ्लोटिंग करने की, उसका जो बैली है, स्टमक जो है वो टच हुआ। एंड ही डिड नॉट सिंक, और वो डूबा नहीं इस बार। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द सी, अब वो सीख गया था कि किस तरह से फ्लोट किया जाता है, किस तरह से जो है पानी पर तैरा जाता है, पानी पर जो है स्विमिंग की जाती है। तो ही वॉज नाउ फ्लोटिंग ऑन द सी। हिज फैमिली मेंबर्स वर प्रेजिंग हिम, और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उसे प्रेज कर रहे थे। ऑफरिंग हिम पीसेस ऑफ फिश, उसे ऑफर कर रहे थे खाने के लिए, उसे जो टुकड़े हैं मछली के वो दे रहे थे। दस द सीगल मैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी ये फर्स्ट जो फ्लाइट है उसको कंप्लीट किया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आई विल सून अपलोड। मुझे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे, यानी कि ये जो हमारी स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, ये क्या मैसेज हमें देती है, या हम इससे क्या मोटिवेशन ले रहे हैं, क्या मोटिवेशन हम गेट कर सकते हैं, किस तरह का जो ये मैसेज है वो हमें कन्वे कर रही है। लेट्स सी द आंसर। दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, ऑफ कोर्स वी नो दैट ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज, और ये मैसेज कन्वे करती है दैट वी लर्न बाय टेकिंग करेज, कि अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है तो हमें साहस हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए। एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल, हम चुपचाप बैठकर या आलसी होकर के हम किसी भी चीज को सीख नहीं सकते। सो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग देन वी शुड हैव करेज। अ यंग सीगल इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, पहले तो उसके साथ क्या हो रहा था, जब वो उसी लेज पर था, उसके सारे उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन, तो वो उसे खिला रहे थे उसके पेरेंट्स। बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, लेकिन जब टाइम आया कि अब उसे भी उड़ना सीखना चाहिए, ही फील्स अफ्रेड, तो वो डरने लगा। हिज पेरेंट्स ट्राई मेनी ट्रिक्स टू टीच हिम टू फ्लाई,
हालांकि उसके पेरेंट्स ने कोशिश भी की उसे सिखाने की। जैसे हम स्टार्टिंग में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम कई बार गिरते हैं और हमें डर भी लगता है, बट एट लास्ट वी गेट सक्सेस। तो इसी तरह से उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे कोशिश कर रहे थे सिखाने की, बट वो उसे डर लग रहा था। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, he was so afraid that he refused to fly। उसने मना कर दिया कि now I can't fly, अब मैं उड़ नहीं सकता। At last his mother hits upon a plan। तो लास्ट में उसकी माँ जो है एक she makes up a plan, वो एक प्लान बनाती है। She tempts him with food in her beak। वो उसे टेम्पटेशन देने की कोशिश करती है, लालच देने की कोशिश करती है। वो उसके पास आती है उड़ती हुई, पर वो बिल्कुल उसके नियर नहीं आती, वो केवल आसपास ही वहां पर शी इज फ्लाइंग, वो उड़ रही है। एंड शी हैज अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। शी ओनली फ्लाइज नियर हिज लेज। वो उसके लेज पर या किनारे पर ही वो उड़ती है, उस चट्टान के आसपास। एंड डज नॉट लैंड देयर, वो वहां आती नहीं है, लैंड नहीं करती। इन ऑर्डर टू गेट फूड, और उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए द हंग्री सीगल कम्स टू द लेज। वो आता है ऑफ द रॉक, उस चट्टान के किनारे पर। एंड फॉल्स फ्रॉम इट, और वहां से गिर जाता है। एट फर्स्ट ही इज टेरिफाइड, सबसे पहले तो वो डरा हुआ है, टेरिफाइड हो जाता है। बट देन ही ओपन्स हिज विंग्स, फिर अपने वो फेदर्स को या विंग्स को जो है खोलता है। एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और वो उड़ना सीख लेता है। ही इज हैप्पी टू नोट दैट ही डिड नॉट फॉल इन द सी। अब वो खुश है कि वो गिर नहीं रहा है। एंड ही हैज लर्न्ड हाउ टू फ्लाई इन द स्काई। इन दिस वे द यंग सीगल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ। और इस तरह से वो अपनी लाइफ की पहली जो उड़ान है वो पूरी करता है। When he takes courage, लेकिन वो ये तभी कर पाता है जब उसके अंदर साहस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप करेजियस हैं और अगर आप किसी काम को फुलफिल करना चाहते हैं तो आप उस कोशिश कीजिए। हो सकता हो स्टार्टिंग में आपको कई सारी अनसक्सेसफुलनेस मिले, बट एट लास्ट यू विल गेट सक्सेस। एंड जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है कि हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में कई सारे बैरियर्स आएंगे, लेकिन आपको उनको तोड़ते हुए, ब्रेकअप करते हुए यू कैन मूव अहेड, यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।